students, welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Friends, we were discussing the thermal power plant. So, today is our 12th lecture. Today's topic is burner used in thermal power plants. Dear friends, we have already discussed the types of fuel as well as how can we burn the fuel, right. So, we discussed that there are two type of burning system, one is stoker firing, other is pulverized fuel firing, right. So, in pulverized fuel firing, we convert coal into the powder form and we burn with the help of burners. In the last lecture, I discussed the various pulverized mills. So, today I will discuss the various types of burner which are used in thermal power plants just to burn the fuel. Dear friends, you can see what is the use of burner. The function of the burner is to fire the pulverized coal along with the primary air into the furnace. The secondary air is admitted separately below the burner or around the burner or from somewhere else in the furnace. A good burner should be able to produce a uniform and stable flame with almost complete combustion of fuel. Friend, this is the necessary condition. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन कि कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, पूरा फ्यूल बर्न होना चाहिए, राइट. अ बर्नर शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. सो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है बर्नर से अगर आप देखना चाहें. सो देखिए, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज it should mix the fuel and primary air thoroughly and bring this mixture in contact with the secondary air to create sufficient turbulence. जितना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा, जितना अच्छा टर्बुलेंस होगा, उतना अच्छा फ्यूल की बर्निंग होगी. सेकेंड वन इज इट कंट्रोल द फ्लेम शेप एंड इट्स ट्रेवल इन द फर्नेस. ये भी बर्नर को कंट्रोल करना है. थर्ड वन, it should ensure adequate protection against overheating and excessive abrasive wear. Fourth one, it should ensure complete combustion. I told you this is very important condition. So, it should ensure complete combustion, right. एक और चीज़ है कि if possible the flow of residue, जैसे अगर हम कोल यूज़ करते हैं तो रेजिड्यू क्या होगा, ऐश. सो फ्लो ऑफ रेजिड्यू इज ऑटोमेटिकली टुवर्ड द ऐश पिट. मीन्स जो भी उसका एग्जिट पॉइंट है वहाँ तक फ्लो रेजिड्यू का ऑटोमेटिकली हो इफ पॉसिबल. सो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बर्नर. द फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल. फ्यूल कैसा है, पार्टिकल साइज, फ्यूल के साइज क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, 6 mm का है, 5 mm का है, 1 mm का है, और स्मॉलर साइज है, माइक्रोन्स है, या और बड़ा साइज है. मिक्सिंग प्लेस ऑफ फ्यूल एंड एयर. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एयर. सो प्राइमरी एयर और फ्यूल कहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, इनसाइड द बर्नर और बिफोर द बर्नर और आउटसाइड द बर्नर. सो कहाँ पर मिक्स हो रहे हैं. नेक्स्ट वन इज प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी एयर एंड सेकेंडरी एयर. इन स्टैंडर्ड कंडीशंस हम सोचते हैं, हम ये मानते हैं कि प्राइमरी एयर मस्ट बी 15% ऑफ द टोटल एयर. सो प्राइमरी एयर 15% होनी चाहिए, बाकी सेकेंडरी एयर होनी चाहिए. volatile matter content and furnace design. So, these are the factors which affect the performance of a burner. Now, all the burners can be classified into three types: coal burner, oil burner and gas burner. Here we are saying coal burner because in thermal power plant we are burning coal as a fuel, right. Oil burner, somewhere we can use oil, somewhere we can use gas also. So, that is why we are using gas burner also, right. Now, first of all we will discuss about the coal burner. कोल बर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम बर्नर यूज़ करते हैं, सो बर्नर यूज़ करने के लिए अगर आप कोल यूज़ कर रहे हैं, सो कोल को सबसे पहले पाउडर फॉर्म में यानी पल्वराइज फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो उसके मेथड हमने डिस्कस किए थे, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्टाइज द कोल इनटू पल्वराइज फॉर्म. सो पल्वराइज कोल इज अवेलेबल
और पल्वराइज कोल में से भी हमने मॉइस्चर को रिमूव कर दिया, यह मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है. सो कोल बर्नर्स आर यूज टू बर्न पल्वराइज फ्यूल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. कोल बर्नर्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स. कौन कौन से 4 टाइप्स हो सकते हैं? लॉन्ग फ्लेम बर्नर, टर्बुलेंट फ्लेम बर्नर, टेंजेंशियल बर्नर एंड साइक्लोन बर्नर. तो इन चारों के बारे में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग फ्लेम बर्नर. लॉन्ग फ्लेम बर्नर इज ऑल्सो नोन एज लैमिनार फ्लेम बर्नर या लैमिनार बर्नर. इट इज ऑल्सो नोन एज यू फ्लेम बर्नर बिकॉज इन दिस केस आप ये देख सकते हैं, इस केस के अंदर देखिए फ्लेम यहाँ से आ रही है ये और इस तरीके से ये चली गई. सो यू कैन सी इट मेक्स अ शेप ऑफ यू. इंग्लिश का जो लेटर होता है यू की तरह की शेप ये बना रहा है. और साथ में आप देख सकते हैं कि ऑल द लाइन्स आर सेपरेट, सारी लाइन्स अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट. इट मीन्स दिस इज लैमिनार. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैमिनार फ्लेम बर्नर और यू फ्लेम बर्नर. हियर पल्वराइज कोल इज सप्लाइड विद प्राइमरी एयर. यू कैन सी फ्रॉम हियर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज प्राइमरी एयर एंड कोल. सो पल्वराइज कोल मीन्स पाउडर फॉर्म और पल्वराइज फॉर्म. सो pulverized fuel is supplied with primary air, right. Secondary air and tertiary air is also there. This is tertiary air, this is secondary air. So ये दो air भी यहाँ पर हैं. Tertiary air is supplied for better mixing of fuel and air, right. Now secondary air, hot secondary air is supplied for better complete and rapid combustion of fuel, right. Flame travels long distance, so having sufficient time to burn the fuel. You can say कि फ्लेम यहाँ से जनरेट हो रही है एंड लाइक दिस, इस तरीके से ये फ्लेम ट्रेवल कर रही है. सो इट हैज सफिशिएंट टाइम टू बर्न द कंप्लीट फ्यूल. सो आप कह सकते हैं कि जितना भी फ्यूल है यहाँ पर सारा फ्यूल बर्न हो जाता है और कोई भी अनबर्न पार्टिकल यहाँ से नहीं रह पाता यहाँ पर, राइट. दिस फर्नेस इज यूज फॉर लो वोलेटाइल कोल विच आर इक्विप्ड विद दिस टाइप ऑफ बर्नर फॉर ए लॉन्ग फ्लेम पाथ फॉर स्लोइंग बर्निंग ऑफ कोल पार्टिकल्स. और आप देखिए जब कोल पार्टिकल्स यहाँ बर्न हो जाते हैं, बर्न होने के बाद दे कन्वर्ट इनटू द ऐश. यहाँ पर रेजिड्यू क्या होगा? ऐश. सो ऐश विल सेटल डाउन और ऐश ऑटोमेटिकली, ये फ्लो ऑफ एयर आप देख रहे हैं इस तरीके से है, फ्यूल और एयर की जो पाथ है इधर से. सो इसी की वजह से ये ऐश धीरे धीरे नीचे सेटल होगी और नीचे से ऑटोमेटिकली विद दिस गैसेज ये अपने आप ट्रेवल करती है यहाँ पर ऐश पिट में. दिस इज ऐश पिट. सो ऐश पिट में यहाँ पर गैस ऐश सप्लाई अपने आप हो जाती है और यहाँ से इसको हटा करके ऐश स्टोरेज में भेज दिया जाता है. डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट फ्लेम बर्नर की, और इसको हम टर्बुलेंट फ्लेम बर्नर भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर लेमिनार फ्लो नहीं रह पाता है, यहाँ पर टर्बुलेंट हो जाता है फ्लो. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो बर्नर है इसको हम हॉरिजेंटली और एट सम एंगल इंस्टॉल करते हैं, इसको वर्टिकल इंस्टॉल नहीं करते हैं, राइट. हियर यू कैन सी दिस इज़ द बर्नर. ये बर्नर है, आप ये देख सकते हैं, ये सारा ये बर्नर है. कोल एंड प्राइमरी एयर सप्लाइड फ्रॉम द हियर एंड सेकेंडरी एयर इज सप्लाइड फ्रॉम द हियर. Here we are using a damper which control the quantity of secondary air, right, which control the quantity of secondary air. So dear friends, here the primary air mix with coal and the secondary air is so supplied that there is a good mixing of the primary air, coal and secondary air in the burner itself. आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एयर और कोल यहाँ से आएगा, यहाँ से, और सेकेंडरी एयर यहाँ से जा रही है, और in this portion both will get thoroughly mixed in this portion, right. Now due to high turbulence created, the mixture burn intensely and produce a short flame. ध्यान रखना, पहले वाले में क्या था? लॉन्ग फ्लेम था, इसमें क्या है? शॉर्ट फ्लेम है, राइट. इट प्रोड्यूस शॉर्ट फ्लेम विच इज इंटेंसली हॉट and it gives high rate of combustion as compared to any other type of burner. So इसमें जो rate of combustion है वो सबसे ज़्यादा होता है औरों से, right. और here we are trying to use high volatile coal and all modern thermal power plants prefer this type of burner. So they are using this type of burner. अब देखिए यहाँ से ये फ्यूल स्प्रे होगा और फ्यूल यहाँ पर सारा बर्न होगा, और बर्न होने के बाद ऐश पार्टिकल विल सेटल डाउन, ash particle will settle down, or this is you can say ash pit.
सो ऐश, यहाँ पर सारे ऐश पार्टिकल्स आ गए, ऐश पिट है, ऐश पिट से हम ऐश को ले जा सकते हैं और इसको ले जाने के बाद इसको ऐश स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंशियल बर्नर। अब देखिए टेंजेंशियल नाम कहाँ से आया? टेंजेंशियल नाम आया बिकॉज यहाँ पर जो डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंट। अब टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए? एक सर्कल होना चाहिए, सर्कल का टेंजेंट होगा। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी ए डायग्राम हियर, देयर आर 4 बर्नर्स, लेट्स से 1 2 3 4, there are 4 burners and all these 4 burners are directed the fuel in such a way that it must be a tangent of an imaginary circle। एक सर्कल इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर कोई एक सर्कल है यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ से ये इसके टेंजेंट जाएगा, यहाँ से इसके इस तरीके से इसके टेंजेंट जाएगा, यहाँ से इस तरीके से टेंजेंट जाएगा और यहाँ से इस तरीके से टेंजेंट जाएगा। सो इमेजनरी सर्कल है और इमेजनरी सर्कल के टेंजेंट में इस सारे बर्नर फ्यूल का सप्लाई करते हैं। दे सप्लाई प्राइमरी एयर विद फ्यूल और सेकेंडरी एयर क्या है बर्नर में? देखिए जैसे हमने एक बर्नर में दिखा रखा है, प्राइमरी एयर और फ्यूल यहाँ से आ रहा है और सेकेंडरी एयर यहाँ से सप्लाई हो रही है एंड दे विल गेट वेल मिक्सड इन द बर्नर इटसेल्फ, और बर्नर में मिक्स होने के बाद ये सप्लाई किया जाता है। सो दीज बर्नर आर इंस्टॉल्ड एट ऑल द 4 कॉर्नर्स ऑफ द फर्नेस सच दैट द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय द बर्नर इज टेंजेंशियल टू द इमेजनरी सर्कल, जैसा मैंने आपको बताया, एट द सेंटर ऑफ ए फर्नेस। द swirling action produce adequate turbulence in the furnace that it complete the burning in very short period of time, right। अब यहाँ पर होता क्या है कि high rate of heat energy released and it is possible with this method of firing। why? because here we are using 4 burners, 4 बर्नर आप यूज़ कर रहे हैं। सो पहले जितने भी केस हमने डिस्कस किए उसमें सिंगल बर्नर था, इस केस में 4 बर्नर्स हैं, 4 बर्नर, और चारों बर्नर फ्यूल की सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ सारा फ्यूल एक साथ बर्न हो रहा है, एक ही जगह पर बर्न हो रहा है, राइट। इसीलिए हाई रेट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इज पॉसिबल विद दिस मेथड ऑफ फायरिंग। अब स्पेशली मैं इसके बताऊंगा कि इसके एडवांटेज क्या हैं। अब देखिए इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, द बर्नर पार्ट्स आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर। अब दोबारा देख सकते हैं, देखिए बर्नर यहाँ पर है और बर्निंग यहाँ पर हो रही है। बर्नर इज हियर, बर्निंग इज हियर, सो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द बर्नर एंड द बर्निंग, दैट्स वाई बर्नर पार्ट्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर। ऑपरेशन इज वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं ऑपरेशन इज वेरी सिंपल। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्नेस वॉल्यूम ड्यू टू हाई हीट रिलीज, राइट, एंड हियर देयर इज मैक्सिमम टर्बुलेंस इन द फर्नेस। इसमें सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस मिलते हैं बिकॉज देयर इज ए टेंजेंशियल एक्शन और सारा स्वर्लिंग एक्शन यहाँ पर हो रहा है। सो मैक्सिमम टर्बुलेंस यहाँ पर मिलती है। पल्वराइज, लिक्विड, गैसियस फ्यूल means any type of fuel, you can burn solid fuel that is in pulverized form, you can burn liquid fuel, you can burn gaseous fuel separately और in combination, means एक साथ तीनों तरह का फ्यूल भी आप बर्न कर सकते हैं और अलग अलग तरह का फ्यूल भी बर्न कर सकते हैं। जैसे एक बार आप सिर्फ पल्वराइज फ्यूल बर्न करना चाहें, एक बार ऑयल बर्न करना चाहें, एक बार गैस बर्न करना चाहें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक बर्नर से पल्वराइज फ्यूल आ रहा है, दूसरे बर्नर से ऑयल आ रहा है, तीसरे बर्नर से गैस आ रही है। सो ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। सो कोई भी कम्बिनेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 4th बर्नर है दैट इज नॉन ए साइक्लोन बर्नर। अब साइक्लोन आप नाम से समझ रहे होंगे, देयर इज ए साइक्लोन, देयर इज ए साइक्लोन। सो साइक्लोन बर्नर जो है इट यूज पल्वराइज कोल, राइट। सो द यूज ऑफ पल्वराइज कोल इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ पल्वराइजेशन ऑफ कोल। अभी देखिए जितने मैंने पहले 3 तरह के बर्नर यूज़ करे हैं उन सभी में क्या आपको यू नीड कोल इन द पाउडर फॉर्म। कंप्लीट पाउडर फॉर्म में आपको कोल मिलना चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अगर साइज़ ज़्यादा है तो यूज़ नहीं हो सकता। सो ये साइक्लोन बर्नर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को या कॉस्ट को ओवरकम कर दिया गया है। जैसा मैंने कहा कि भाई पल्वराइज कोल अगर आप यूज़ करते हैं तो इट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ पल्वराइजेशन, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लाई ऐश इन द कंप्लीट सर्किट। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और जितनी भी ऐश है उसमें से लगभग 70% एज ए फ्लाई ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो उसको कलेक्ट करना भी आसान नहीं है और साथ में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं कि वी हैव ट्राई टू मेड टू डेवलप सच बर्नर्स
जिसमें हम क्या है कि कंप्लीट पल्वराइज फॉर्म में कोल यूज़ ना करें, थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ हो। जैसे कि हमने साइक्लोन बर्नर को डेवलप किया और साइक्लोन बर्नर में लगभग 6 mm का अगर साइज़ है कोल का, तो 6 mm के कोल को हम यहाँ पर बर्न आसानी से बर्न कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट पाउडर फॉर्म में ज़रूरत नहीं, पल्वराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सो थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है कोल का, इट मीन्स पल्वराइजेशन करने में, कोल को इस फॉर्म में लाने में कॉस्ट कम इन्वॉल्व होगी, और क्योंकि कोल का साइज़ ज़्यादा है तो फ्लाई ऐश कम जनरेट होगी। In these burner, very high turbulence is created and it use preheated air about 2000 degrees Celsius for combustion, which is applied under pressure. Right, the fuel is immediately burned and the ash in the form of molten film travel down on an inclined surface. Cyclone burner can burn even low grade fuel efficiently. अब देखिए ये एक साइक्लोन बर्नर का एक डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। देखिए इन दो व्यूज़ यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, दोनों आपको दिखाई देंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले ये देखिए, दिस इज द, यू कैन से दिस इज द साइड व्यू। इन दिस साइड व्यू देर आर टू एंट्री, वन इज दिस, अदर इज दिस, लेट्स से आई मार्क इट इज़ 1 एंड दिस एंट्री इज 2। फ्रॉम 1 प्राइमरी एयर एंड कोल इज ट्रांसफर्ड, प्राइमरी एयर एंड कोल इज सप्लाइड फ्रॉम एंट्री 1। एंड आप देख सकते हैं कि जो एंट्री है इट इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ एट इंक्लाइंड, और इसकी शेप इस तरीके से दी हुई है, लाइक स्पाइरल इसकी शेप हमने दी हुई है कि जैसे आप यहाँ से ये सप्लाई करेंगे इट विल मूव लाइक दिस स्पाइरल, राइट। और इसके साथ साथ सेकेंडरी एयर को भी अगर आप देखेंगे, सेकेंडरी एयर यहाँ से सप्लाई की जा रही है, और सेकेंडरी एयर में भी आप देखिए स्ट्रेट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ स्पाइरल शेप। सो सेकेंडरी एयर यहाँ से सप्लाई करेंगे, और जब यहाँ से सप्लाई करेंगे तो इट विल वेल मिक्स विद हियर। सो इससे क्या होगा, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। पहले इस तरीके से हो रहा था और साथ में इस तरीके से क्रिएट होगा, सो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होगा। और जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता रहेगा इट विल कन्वर्ट इनटू द ऐश, और ऐश विल सेटल डाउन बिलो ड्यू टू द ग्रेविटी। और बिकॉज यहाँ पर ये साइक्लोन क्रिएट हो रहा है और ये मूव कर रहा है ये, सो उसकी वजह से ये जो ऐश है, ये ऐश भी यहाँ से मूव करेगी लाइक इन दिस डायरेक्शन, एंड ऐश विल कम हियर विच इज़ द ऐश पिट। और ऐश पिट में से इस ऐश को हम क्या करेंगे, स्टोरेज तक इसको यहाँ से ले जाएंगे थ्रू सूटेबल मीडियम। ठीक है, अब साइक्लोन बर्नर के एडवांटेज क्या, मैंने आपको साइक्लोन बर्नर बताया, मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जो साइज़ है इसका कोल का, वो साइज़ बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बर्नर। सो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग साइक्लोन बर्नर्स? सो द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट सिंपल कोल क्रशिंग इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल इंस्टेड ऑफ कॉस्टली पल्वराइज मिल्स। अब पल्वराइज मिल्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कोल क्रश कर दीजिए और अप टू 6 mm साइज है उसको आप बर्न कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ मिलिंग द कोल इज़ रिड्यूस्ड, ये तो मैंने आपको बताया बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद क्या है कि हाई फर्नेस टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड, साइक्लोन बर्नर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, साथ में क्या है कि यहाँ पर इट डज़ नॉट नीड मच एक्सेस ऑफ एयर बिकॉज हियर वी आर यूजिंग ए फोर्स ड्राफ्ट फैन विच सप्लाई द एयर। सो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेस एयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर फोर्स ड्राफ्ट फैन आप यूज़ कर रहे हैं, और वही जो फोर्स ड्राफ्ट फैन जो यूज़ कर रहे हैं, एयर जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं, वही एयर ऐश को सप्लाई, ऐश को आगे ऐश पिट तक लेकर के जा रही है, राइट। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, it can burn low grade of fuel, system can also be used with liquid and gaseous fuel, rate of combustion can be controlled by adjusting the rate of fuel feed and rate of air flow। ठीक है, इसके बाद क्या, हाई फर्नेस कैपेसिटी, फर्नेस टेम्परेचर ऑब्टेन्ड आर हाई सो इट इम्प्रूव बॉयलर एफिशिएंसी। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें मिलती हैं, तो ये सारे एडवांटेज हैं इसके। बट जब हम कहते हैं एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो आपने फोर्स ड्राफ्ट फैन आपने यूज़ किया, तो जब भी आप फोर्स ड्राफ्ट फैन यूज़ करते हैं सो इट इन्वॉल्व सम कॉस्ट एज वेल एज इट हैज़ सम रनिंग कॉस्ट, सो हायर फोर्स ड्राफ्ट फैन प्रेशर इज रिक्वायर्ड, राइट। यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि यू कैन यूज़ रिलेटिवली लो ग्रेड फ्यूल ऑल्सो, सो फॉर्मेशन ऑफ मोर NOx, नॉक्स आप कह सकते हैं। सो नॉक्स की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, एंड दिस टाइप ऑफ बर्नर इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई सल्फर कंटेंट फ्यूल, मीन्स द कोल विच हैव वेरी हाई सल्फर, या ऑयल और गैस जिसमें भी सल्फ़र बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा सल्फ़र वाले फ्यूल के लिए ये वाला बर्नर सूटेबल नहीं होता है। ये यहाँ पर इसकी डिसएडवांटेज है। फ्रेंड्स,
इसके बाद हम बात करते हैं ऑयल बर्नर की। मैंने आपको बताया ना बर्नर 3 तरह के यूज़ होते हैं, कोल बर्नर, ऑयल बर्नर एंड गैसियस बर्नर। सो ये जो हमने बात की थी, ये सारी बात की थी हमने कोल बर्नर के लिए। अब हम डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑयल बर्नर की। अब देखिए ऑयल बर्नर क्या, आपने जनरली मार्केट में देखा भी होगा, बहुत सारे लोग फर्नेस में ऑयल बर्नर यूज़ करते हैं। सो यूजुअली ऑयल बर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ फॉर स्मॉल कैपेसिटी ऑफ बॉयलर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। यहाँ पर जो पर्पज़ है वो पर्पज़ कि कैप्टिव पावर प्लांट में इसको यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पर पर्पज़ बहुत बड़े पावर प्लांट के लिए नहीं है जब हम ऑयल बर्नर यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जो आज की डेट में हम ऑयल पावर प्लांट्स बहुत कम यूज़ करते हैं। मैंने आपको अपनी शुरू की स्लाइड्स में, शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि किस किस पावर प्लांट से कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था कि ऑयल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो बहुत कम है हमारे इंडिया में, राइट। सो द पर्पज़ ऑफ एन ऑयल बर्नर इज़ टू रिसीव सप्लाई ऑफ ऑयल, मीटर इट अकॉर्डिंग टू द लोड on the plant, atomize it and vaporize it the oil completely. So ये सारे फंक्शन है ऑयल बर्नर के। द मिक्सिंग ऑफ ऑयल विद बर्नर इज सो प्रोवाइडेड दैट ऑयल कुड बी बर्न completely with minimum excess of air for achieving the maximum temperature. अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑयल बर्नर की, द ऑयल बर्नर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज वेपराइजिंग ऑयल बर्नर, अदर इज एटमाइजिंग ऑयल बर्नर, राइट। सो वेपराइजिंग ऑयल बर्नर की अगर मैं बात करता हूँ, यू कैन सी, अगर मैं वेपराइजिंग ऑयल बर्नर की बात करता हूँ, दीज आर यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। ध्यान रखिए दोनों में यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक में भी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है, ब्लो टॉर्च है, गैसोलिन स्टोव है, एक्सेट्रा है। दीज बर्नर आर नॉट यूज फॉर स्टीम जनरेशन इन बॉयलर सिंस ऑयल यूज इज़ हैवी। सो इनको हम स्टीम जनरेशन में यानी बॉयलर में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एटोमाइजिंग ऑयल बर्नर। अब एटोमाइजिंग ऑयल बर्नर की अगर मैं बात करता हूँ, तो द पर्पज़ ऑफ दिस बर्नर इज टू एटोमाइज द फ्यूल इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड मिक्स विद एयर। These burners are used for oil fired furnace and in case of furnaces for boilers. इसमें अगर मैं फर्दर बात करता हूँ कि जैसे वेपराइजिंग बर्नर है, तो वेपराइजिंग बर्नर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देयर आर 6 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेपराइजिंग बर्नर। यू कैन सी द फर्स्ट वन इज इट वेपराइज द फ्यूल बिफोर द इग्निशन, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है एयर एंड वेपराइज फ्यूल मिक्स वेल, आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से एयर और फ्यूल मिक्स हो जाने चाहिए, राइट। सूट फॉर्मेशन मिनिमम होनी चाहिए, फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए मिनिमम टाइम में। अच्छा, इसके साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट है कि पर आवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज होनी चाहिए। मीन्स जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है हीट हमें हर घंटे उतनी ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट है कि एफिशिएंसी, कि इवन एट पार्ट लोड एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फुल लोड पर तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और पार्ट लोड पर एफिशिएंसी पुअर हो गई। सो एफिशिएंट कंबस्शन ऑफ फ्यूल इवन एट पार्ट लोड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट। अगर मैं वेपराइजिंग बर्नर के टाइप्स की बात करता हूँ तो 4 टाइप्स के हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रोटेटिंग बर्नर, रीसर्कुलेटिंग बर्नर एंड विक टाइप बर्नर। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमाइजिंग बर्नर है, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैंने आपको नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। सो एटोमाइजिंग प्रेशर बर्नर की अगर मैं बात करता हूँ, सो दिस बर्नर मेक्स यूज़ ऑफ हाई वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल सच एज नेफ्था, वोलाटाइल गैसोलिन एक्सेट्रा, राइट। हियर द फ्यूल एट लो प्रेशर इज पास्ड थ्रू ए ट्यूब adjacent to the flame before being released through an orifice, right. While passing through the hot tube, most of the fuel is vaporized, so that the fuel ejected from the orifice is more or less a vapor. The required quantity of primary air is supplied to burn vapor steam in a cylindrical tube. और अगर दूसरे की मैं बात करता हूँ रोटेटिंग कप बर्नर की, these burners are used on low as well as medium capacity boilers. In this type of burner, the fuel oil flow through a tubes in the hollow shaft of the burner and into the cup at the furnace end. An electric motor or an air turbine runs the shaft and the cup at high speed. स्पीड कितनी हो सकती है 3000 टू 10,000 RPM तक स्पीड हो सकती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्यूल इज स्प्लिट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड अबाउट 10 to 15% ऑफ एयर इज सप्लाइड एज प्राइमरी एयर एंड दिस एयर इज सप्लाइड फ्रॉम ए ब्लोअर सराउंडिंग द कप।
अगर नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ रिसर्कुलेटिंग बर्नर की, दिस इज रिसर्कुलेशन बर्नर, द पार्ट ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट में बी रिसर्कुलेटेड इन ऑर्डर टू हीट अप द इनकमिंग स्ट्रीम ऑफ फ्यूल एंड एयर, राइट. Low ratio of mass of recirculated combustion product to the mass of unburnt fuel air result in less temperature rise of the mixture. एक और बर्नर है विक टाइप ऑफ बर्नर की, अगर मैं बात करता हूँ, इन दिस टाइप ऑफ बर्नर ए बर्नर ऑफ ए कॉटन और एस्बेस्टस विक इज़ यूज्ड विच रेज द फ्यूल. इसमें मीन्स होता क्या है कि कॉटन की या विक की फ्यूल विक होती है और उस विक में क्या होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू फ्यूल आता है और कैपिलरी एक्शन के थ्रू फ्यूल आने के बाद वहाँ से वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होने पर वहाँ से वो फ्लेम बर्न होती है. ठीक है, इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर ओनली फॉर डोमेस्टिक पर्पज़. अगर मैं बात करता हूँ एटोमाइजिंग बर्नर की, तो एटोमाइजिंग बर्नर की रिक्वायरमेंट है एटोमाइज द फ्यूल इन फाइन पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज, इट सप्लाई एयर इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड एट राइट प्लेस ऑफ कंबस्शन चैम्बर, हाई कंबस्शन इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड, हाई थर्मल एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, सूट फॉर्मेशन मिनिमाइज होनी चाहिए और एफिशिएंसी एट पार्ट लोड पर और वेरिंग लोड पर मैक्सिमम होनी चाहिए. इसके 3 टाइप्स के बर्नर होते हैं, मैकेनिकल है, स्टीम है और लो प्रेशर है. 3 टाइप के बर्नर होते हैं. मैकेनिकल बर्नर की अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल बर्नर के जो मेन 4 पार्ट्स होते हैं, एटोमाइज़र, एयर रजिस्टर, डिफ्यूज़र एंड बर्नर थ्रोट ओपनिंग. सो ये 4 पार्ट्स यहाँ पर मैकेनिकल बर्नर के यहाँ पर होते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ स्टीम और हाई प्रेशर बर्नर की और हाई एटोमाइजिंग बर्नर की, सो इसमें 2 तरह की मिक्सिंग होती है, वन इज़ आउटसाइड मिक्स और अदर इज इनसाइड मिक्स. सो oil atomization that which employ steam is usually the most convenient और इसमें 4 to 5% ऑफ स्टीम जनरेटेड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है. इसके बाद लो प्रेशर एयर की मैं बात करता हूँ, दिस इज मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एयर. इसमें क्या करते हैं हम प्रेशर काफ़ी कम रखते हैं और प्रेशर 0.015 से 0.15 बार तक प्रेशर यहाँ पर रहता है. इसके बाद हम गैस बर्नर की बात करते हैं. 3 तरह के यहाँ पर गैस बर्नर आप देख सकते हैं. द फर्स्ट वन बर्नर इज यूज व्हेन मिक्सिंग इज पुअर. in this burner mixing is poor and long flame result, right. second में you can see ring type of burner है, short flame result होती है. और लास्ट में देखते हैं कि when gas and air are under pressure is used, so we are using this type of the burner. अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ तो these are very simple. We can control furnace temperature very easily. Long flame with uniform heating can be produced. Cleanliness, high chimney is not required and no ash removal. सो फ्रेंड्स, इसकी एप्लीकेशन की और मैं बात करता हूँ गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में या जहाँ ट्रांसमिशन लाइन है या जहाँ कोल बहुत कॉस्टली है वहाँ पर यूज़ होते हैं. एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्लेम फ्रॉम टर्निंग बैक, सो हम क्या करते हैं कि भाई फ्लेम वापस ना आए. सो जो गैस की जो वेलोसिटी है ये फ्लेम प्रोपेगेशन से ज़्यादा होनी चाहिए. सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स. सो थैंक यू.